Hello and welcome to all. So let's start the discussion on the pressure measurement. So you are watching this video on the Aadhaar Academy. This is the lecture number 2, and in this lecture we are going to discuss what is a manometer. So we will first discuss about the manometer and especially about the piezometer and the U-tube manometer. So this will be the sequence of the flow. So let's start. Uh, in the previous lecture we have discussed what is the hydrostatic law, and we have said that the rate of increase of the pressure in a vertical direction, it is equal to the weight density at that point. What hydrostatic law का जो statement है, variation of the pressure in vertical direction is equal to weight density at that particular point. As well as we have said that pressure does not vary in the horizontal direction. That means equality of the pressure at the same level in a static fluid. So del P over del X, that will be 0 in a static fluid. And for if we measure pressure in vertical direction, so del P over del Z, it is equal to rho times of G. So suppose अगर मेरे पास, if we have a vessel like this, all right, this is a vessel which is filled with some fluid. Let it is filled with some fluid, and if I mark, let this particular point we are calling, let this is A. This is A, and let this point here at the bottom of the vessel, let this is point B. Let the another point, let this point here, it is C. All right, so this is PA, sorry, this is A point at the free surface, this is B point, and this is C point. Let the height of the vessel, that means it is filled up to height h. All right, so if I apply this hydrostatic law for these 3 points PA, A, B and C, so clearly I can say PA, it will be smaller than PB, or I can, in other words, pressure at point B, it will be more as compared to the pressure at point A. ठीक है, B पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, B पॉइंट पे जो प्रेशर है एट दिस पॉइंट PB, इट इज ग्रेटर देन PA. कैसे बोल सकते हैं, ये लॉ अप्लाई करो. कैसे? लेट दिस इज द रेफरेंस लाइन, इसको मैंने रेफरेंस लाइन ले लिया. दिस इज द रेफरेंस लाइन, एंड इफ मूव डाउन साइड, सो आवर रेफरेंस इज, वी टेक प्लस Z डाउन साइड. किसी भी पॉइंट से अगर हम नीचे की साइड मूव करेंगे, सो ऑलवेज द हाइट दैट विल बी मेजर वी टेक एज अ पॉजिटिव. अगर ऊपर की साइड मूव करेंगे इसी रेफरेंस लाइन से, इफ वी मूव अप साइड, वी टेक नेगेटिव Z. ठीक है, दिस इज आवर साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन क्या है? फ्रॉम एनी रेफरेंस, इफ वी मूव डाउन साइड इन द लिक्विड, सो वी टेक प्लस Z. अगर उसके ऊपर की साइड मूव करेंगे, सो वी टेक नेगेटिव Z. When we move downside, obviously the same time pressure will also increase, so pressure that will be plus P. नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाने पे प्रेशर घटेगा. सो ऊपर की साइड में नेगेटिव P एंड नेगेटिव Z, डाउन साइड प्लस P एंड प्लस Z. सो ये जो पॉइंट है, ये यहाँ का प्रेशर कुछ अलग होगा, यहाँ का प्रेशर अलग होगा, because they are lying at a vertical difference. इन दोनों के बीच में कितना है? It is h. और from A to B we have to move down side. A से B के लिए कहाँ पे मूव करना पड़ेगा? We have to move down side. So down side मूव करने पे प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा. So
PV, obviously it will be greater than PA. Now what about C? C के बारे में क्या बोल सकते हैं? If I compare B and C, so B and C, ये दोनों they are lying on the same level. B and C का level same है, so obviously PB, pressure at point B, that will be equal to pressure at point C. B और C का pressure same होगा. क्यों same होगा? Because the equality of the pressure. These 2 points are lying on the same level, so that is why pressure will be same. अगर सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता है, दिस पॉइंट D, सो अगर D को कंपेयर करें, सो D का प्रेशर क्या होगा? PD, सो इट विल बी ग्रेटर देन PA. PA से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए वी हैव टू मूव सम डिस्टेंस डाउन साइड. यहाँ पे A से आने के लिए वी हैव टू मूव डाउन साइड. एंड इफ यू कंपेयर फ्रॉम C, सो PC से कम होगा. सो PC इज ग्रेटर देन PD. D पॉइंट का जो प्रेशर है वो PC से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे पहुंचने के लिए वी हैव टू मूव अप साइड. C से किधर मूव करना पड़ेगा? वी हैव टू मूव अप साइड, एंड दैट इज वाई वी विल टेक -Z एंड -P. सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू मूव डाउन साइड, अगर डाउन साइड में मूव करेंगे, वी टेक +Z and +P. This will be our sign convention. If you move upside, so we take -Z and -P. And if the points are lying at the same level, so pressure at each point will be same. Suppose यहाँ पे तीसरा कोई point ले लूँ E. So obviously pressure at point B is equal to pressure at point E is equal to pressure at point C. इन तीनों point पे pressure same होगा, but it will be different from PA. So it will be greater than PA. PA का pressure कम होगा. So this was the hydrostatic law that we have already discussed. In this particular lecture, we will use this concept. So let's start the pressure measurement. So pressure measurement is broadly, is done by first manometer and second by using the mechanical gauges. So mechanical gauges has a 4 different class: burden tube, diaphragm pressure gauge, below pressure gauge, and the dead weight pressure gauge. While the manometers, it can be further classified in two heads. This is the number 1, that is the simple manometer, and this is the number 2, differential manometer. Manometer is further classified as a simple manometer as well as differential manometer. In simple manometer, we have a 3 different variety. This is piezometer. This is A, piezometer. U-tube manometer. This is another class of the simple manometer, and this is third variety of the simple manometer, that is single column manometer. So piezometer, U-tube, and single column manometer, these are the variety of simple manometers. So let's start with piezometer. So we are starting with piezometer. So let me change the color. Okay. So simple manometer क्या होता है? So simple manometer, it is consist of a glass tube. So it's simply a glass tube whose one end connected to a point where pressure is to be measured. Glass tube का simple एक glass tube होती है, and its one end it is connected to a point, उस point से connect कर देते हैं जहाँ का pressure हमको measure करना होता है. And another end of the tube, it is remain open to the atmosphere. So simple manometer जितने भी हैं, you will find simply a tube in the form of a tube. इस तरह से tube होगी. One end, this end is connected to a point where is pressure to be measured. ये वाला end कहीं से connect कर देंगे जहाँ पे हमको pressure measure करना है. And this particular end, it is open to the atmosphere. So this is open to atmosphere. All right. So ये तो simple manometer हो गया. So let's start first variety of the simple manometer, and it is piezometer. So piezometer क्या है? तो piezometer, it is the simplest form of the manometer. This is the
piezometer, it is the simplest form of मैनोमीटर, सबसे सिंपल यही है. सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर एंड इट इज़ यूज टू मेज़र. और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? इट इज़ यूज टू मेज़र मॉडरेट प्रेशर. इट इज़ यूज टू मेज़र moderate pressure of a liquid. So this is this another point about the piezometer. ठीक है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है. सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? ये सिंपली यू कैन सी यहाँ पे एक ट्यूब है विच इज मेड ऑफ ए ग्लास. ये ग्लास का बना हुआ है. यू विल फाइंड देयर इज अ मार्किंग ऑन द ट्यूब. यहाँ पे इस तरह से ग्रेडिंग की होती है. मार्किंग्स स्केल बना होता है ऑन दिस ट्यूब. एंड इस ट्यूब को सपोज दिस इज अ ओपन वैसल. एक वैसल है एंड वी वांट टू मेजर प्रेशर एट समवेयर हियर. लेट दिस पॉइंट इज ए. we want to measure pressure in the vessel at the point A. so इस पॉइंट का प्रेशर हमको मेजर करना है. so हमने क्या लिया? एक ग्लास ट्यूब ले लिया. ग्लास ट्यूब के एक एंड को वी हैव कनेक्टेड एट पॉइंट ए. हमने इसको पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिया. एंड अनदर एंड दिस इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर. ये क्या है? दिस इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर. So simply this tube becomes our piezometer tube. ट्यूब लेके क्या करना है? सिंपली कनेक्ट अ पॉइंट वेयर वी वांट टू मेजर द प्रेशर. जहाँ का प्रेशर मेजर करना है, कनेक्ट दैट पॉइंट. एंड अनदर एंड उसको क्या करना है? ओपन ही रखना है. ओपन ही रखना है. तो सिंपली इट बिकम्स अ पीजोमीटर ट्यूब. अब यहाँ पे वी कैन से बिकॉज सिंस दिस इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, सो दिस विल वर्क एज अ फ्री सरफेस and the pressure that will act on this surface will be atmosphere. इस प्रेशर सरफेस के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है? इट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड सिंस दिस एंड इज ऑल्सो ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ये वाला पोर्शन जो ट्यूब का है इट इज ऑल्सो ओपन टू द एटमॉस्फेयर. सो हियर we will realize that same atmospheric pressure will work here, will act here. As a result you will find the same height of the water column. यहाँ पे दोनों पे हाइट क्या होगा? सेम होगा. क्यों सेम होगा? बिकॉज द सेम प्रेशर एटमॉस्फेरिक इज एक्टिंग ऑन द सरफेस. दोनों जगह पे कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक लग रहा है. सो दिस इज द कनेक्शन ऑफ यू ट्यूब विथ अ वैसल. सो हमको क्या करना है? हमको तो यहाँ वैसल तो वर्क नहीं करना है. वी विल let us look how it is connected with the help of a pipe. so pipe से ये कैसे connected होता है? let us look. so this is here, this is a pipe, circular pipe है. so अगर ये इस तरह का pipe है, this is a length of the pipe and from here ये क्या है? this end is looks like a circle. ये circular pipe है. so यहाँ से हमने इस व्यू से इसको ड्रॉ किया हुआ है. so this is circular pipe and this is a simple tube and we want to measure pressure at the center of the pipe, that is point A. इस पॉइंट का प्रेशर हमको मेजर करना है. तो हमने क्या किया? सिंपली ट्यूब को वी हैव कनेक्टेड थ्रू दिस पाइप. इस पाइप से कनेक्ट कर दिया एंड वी हैव रियलाइज दैट हियर व्हाट वी कैन से PA, that is the pressure inside the pipe, it is greater than the P atmospheric. एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है यहाँ पे प्रेशर. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. ए पॉइंट का प्रेशर, पॉइंट ए का प्रेशर जो है इट इज़ लार्जर एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर. सो दैट इज़ वाई जो फ्लूइड यहाँ पे है उसने वो इसको पुश करके ये क्या ऊपर चढ़ गया है. ये फ्लूइड ऊपर चढ़ गया है. क्यों? because of the high pressure. so PA is greater than the P atmospheric. so that is the first point. now this H we call this is a static head. इसको हम static head बोलते हैं because this is called static head. in terms of head है, so this is the another term that we will use. this is your static head.
अगर मुझे यहाँ का प्रेशर मेजर करना है, सो क्या करूँगा मैं, कैसे मेजर करेंगे? सो एट दिस फ्री सरफेस, इस फ्री सरफेस पे what is pressure that is acting, it is atmospheric. So this is here pressure is atmospheric. यहाँ पे प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक है. कैसे रीच करेंगे? सो फ्रॉम हियर वी विल डाउन साइड पे मूव करते करते कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, समवेयर हियर. लेट दिस पॉइंट इज बी. ओके, लेट दिस पॉइंट सी. सो फ्रॉम सी वी विल मूव डाउन साइड एंड वी विल रीच अप टू दी पॉइंट बी. पहले हम बी तक डाउन साइड में मूव करके पहुंचेंगे, उसके बाद में वी विल स्टार्ट मूविंग. फिर कहाँ पे मूव करेंगे? देन वी, हमको किधर मूव करना पड़ेगा? टू रीच दी बी, इस साइड में मूव करना पड़ेगा. लेट मी चेंज दी कलर. ओके, फ्रॉम ए के लिए यहाँ पे ये इस साइड मूव करना पड़ेगा, डिस्टेंस इस साइड चलना पड़ेगा. ठीक है, पहले तो हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे, यहाँ से ये इस तरह से मूव करते करते वी विल रीच अप टू पॉइंट बी. यहाँ से सेम वर्टिकल हाइट डिस्टेंस, एंड फ्रॉम बी अगेन वी विल मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करके देन वी विल रीच दी पॉइंट ए. ठीक है, सो प्रेशर एट सी, प्रेशर एट सी इट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक, क्योंकि यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है, इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा दैट विल एक्सर्टेड ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. नाउ व्हाट अबाउट पी बी? सो पी बी क्या लिखेंगे हम? पी बी सेम कॉन्टिन्यूस फ्लूइड है, सेम फ्लूइड है, एक तो पहला है, एंड इट इज लाइंग h मीटर बिलो द सरफेस. सी से कितनी डिस्टेंस नीचे है वो? तो अगर नीचे है सो वी विल टेक plus z and plus p. So pressure at B that will be equal to rho g and h. कितना नीचे मूव करेंगे हम? We will move at a distance h. So हमको h distance move करना पड़ेगा and multiply by the specific weight of the fluid. So rho into g and it is equal to pb and plus pb इतना तो पहले से है, और प्लस पहले से कितना है, एटमॉस्फेरिक है. सी पे कितना प्रेशर है? सी पे तो एटमॉस्फेरिक है. सो फॉर बी दिस इज इनिशियल, ऑलरेडी इतना प्रेशर एक्ट कर रहा था एटमॉस्फेयर, और कितना नीचे मूव कर गए, रो जी एच. सो दैट विल बी द प्रेशर एट पॉइंट बी. बी एंड सी, बी एंड ए, बी एंड ए, पॉइंट बी एंड ए are lying on the same line. सेम लाइन पर मतलब सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं. सो दैट मीन्स सेम लाइन पे लाई करने का मतलब प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए. क्यों? क्योंकि डेल पी ओवर डेल जेड, डेल एक्स की डायरेक्शन में प्रेशर चेंज नहीं होता, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होता है. तो हमने वर्टिकली सी टू बी वी हैव पॉजिटिव प्रेशर हमने ऐड किया, एंड फॉर बी टू ए इट विल बी रिमेन सेम बिकॉज बी एंड सी आर लाइंग ऑन द सेम लाइन. सो वी कैन से हमको मिल गया व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट ए. सो पी ए कितना होगा? सो पी ए विल बी पी एटमॉस्फेरिक एंड प्लस रो जी एच. सो दैट विल बी योर प्रेशर एट पॉइंट ए. Alright, so that is how we will calculate the pressure with the help of piezometer. अभी आप इसको अलग अलग वे से you can write. Suppose if you want to measure, this pressure is your absolute pressure. Remember, this is your absolute pressure because we are measuring with respect to zero pressure. ये जो है this is your absolute pressure. But if you want to measure gauge pressure, so gauge pressure क्या होगा? pressure which is measured with respect to the atmosphere. gauge pressure के लिए क्या करना पड़ेगा? for gauge pressure, for P gauge, so P gauge के लिए क्या करेंगे? P atmosphere that will be our reference and we make this is equal to 0. atmospheric pressure को क्या कर देना है?
we take as a reference pressure and we will start reading pressure from here. So यहाँ के start करेंगे, so we'll take as a zero pressure. So PA will be rho GH. This is your pressure at point A, but this is your gauge pressure. This is your gauge pressure. So gauge pressure के लिए always remember put atmospheric pressure 0 कर देंगे उसको, and whatever the pressure that will we get will वो क्या होगा हमारा gauge pressure होगा. But if we add up atmospheric pressure उसमें हमने add कर दिया, so then it becomes absolute pressure. So this is how we calculate the pressure. तो कैसे करना है, from C to B वर्टिकल मूव करना है, एंड वी आर मूविंग डाउन साइड मूव कर रहे हैं, डाउन साइड मूव कर रहे हैं. सो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा. डाउन साइड मूव करने पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा. सो वी हैव एडेड रो जी एच को ऐड कर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. बी एंड ए आर लाइंग ऑन द सेम लाइन. सो सेम लाइन पे होने से क्या होगा, वी यूज द इक्वालिटी ऑफ द प्रेशर. सो पी ए will be equal to PB. Now let us talk about the limitation of the piezometer. So first, you cannot measure the large pressure of a lighter fluid which is filled in the tube. अगर इस ट्यूब के अंदर कोई लाइटर फ्लूइड है, फर्स्ट कंडीशन, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए. लाइट का मतलब लो डेंसिटी फ्लूइड होना चाहिए. सो अगर लो डेंसिटी फ्लूइड है and if it is flowing at a very large pressure, that means PA is very high. PA is much high. So अगर ये केस होगा, so to measure this high pressure, obviously we need a very large length of the tube. Very long tube चाहिए हमको. So very long tube, it will be difficult to handle. It will be difficult to handle. So that is why we cannot measure. Sometime it will be in terms of the meter, 5 meter, 10 meter you will find. So that will be difficult to handle. So that is why we avoid this piezometer to measure the large pressure. And second, you cannot measure the gas. If इस ट्यूब के अंदर if it is some gas is flowing, so and if you simply connect a glass tube, आपने connect कर दिया, so what will happen, you will not find any free surface, और यहाँ से जो भी gases होगे it will escape हो जाएगी. So you will not, यहाँ पे जो भी it will be in the form of the leakage, यहाँ से gases pass हो जाएंगी. So that is why, since gases do not form any free atmospheric surface, so because of that we cannot measure gas pressure of the gas with the help of piezometer. And third point, also if you want to measure negative pressure or the vacuum pressure, so that also cannot be measured by piezometer. So piezometer की help से you cannot measure negative pressure or the pressure of the gas or large intensity of the pressure. So alright, समझ में आ गया कैसे हमने find किया pressure. सो यहाँ से मूव करना है बी तक, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव किया. सो वी विल ऐड रो जी एच एंड नेक्स्ट में वी विल यूज द इक्वालिटी ऑफ द प्रेशर. सो लेट्स मूव फर्दर. लेट्स टॉक अबाउट द यू ट्यूब मैनोमीटर. सो यू ट्यूब मैनोमीटर, दिस इज द सेकेंड वेराइटी ऑफ द सिंपल मैनोमीटर. सो पीजोमीटर के बाद में पीजोमीटर की जो भी डिफिकल्टीज हैं दैट कैन बी सिंपली ओवरकम बाय इन द यू ट्यूब मैनोमीटर. सो जो भी डिफिकल्टी है पीजोमीटर के साथ में उसको हम इस यू ट्यूब मैनोमीटर में सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सो ऑलराइट, सो लेट अस सी व्हाट इज अ यू ट्यूब मैनोमीटर. सो एज द नेम इंडिकेटिंग, a U-tube manometer consists of a glass tube bent in a U shape. So simply एक U shape, वहाँ पे simple एक straight tube थी, now here it is U shape glass tube.
and again one end is connected to a point where is pressure to be measured. जहाँ पे प्रेशर मेजर करना है you can connect that point, and another point it is remain open to the atmosphere. डिफरेंस केवल यहाँ पे है, यहाँ पे we use a U शेप ग्लास ट्यूब, ये इस तरह का U शेप का ग्लास ट्यूब यूज करते हैं. पीजोमीटर में सिंपली क्या यूज करते हैं, सिंपली एक ग्लास ट्यूब ले लो, ओनली स्ट्रेट ग्लास ट्यूब, एंड दैट विल फॉर्म अ पीजोमीटर. बट यहाँ इट इज इन द फॉर्म ऑफ द U शेप. एंड दिस, सपोज अगर ये U ट्यूब है, अगेन कैसे मेजर करना है, फॉर दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन रिटन हियर, कि प्रेशर at 2 point at the same level in a continuous homogeneous fluids are equal. So अगर fluid continuous है and homogeneous है, and we have chosen 2 points such that they are lying on the same level, so obviously pressure at these 2 points will be equal. Condition क्या होनी चाहिए, fluid should be continuous and homogeneous first, and 2 point must be lie on the same level. So 2 point must be at the same level. So if this is the condition, so these 2 points have a equal pressure. So जैसे यहाँ पे देख लो, if this is U tube, if I fill this tube by some fluid, अगर मैंने some कोई fluid इसके अंदर भरा, so what will realize कि liquid column जो हाइट होगा, लेवल होगा, इन दी बोथ दी ट्यूब्स विल बी इक्वल. यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, लेवल यू विल फाइंड यहाँ पे एंड हियर, दीज 2 पॉइंट हैव अ सेम प्रेशर. सेम प्रेशर पे कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर लाइंग ऑन दी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है फर्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज द कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड. यहाँ से यहाँ तक this is the continuous fluid and it is homogeneous, continuous and homogeneous. So if I draw a straight line, so in the fluid this point and this point, like this is A and B, so A और B पे जो pressure होगा वो same होगा. That is the simple concept. आप you can realize भी कर सकते हो कि अगर it is open to the atmosphere and this is also open to the atmosphere and you take a U tube, यहाँ से पानी या कोई भी लिक्विड फ्लू करो, सो दोनों में क्या होगा, लेवल क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज बोथ आर एक्सपीरियंसिंग ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बट यहाँ पे देखो, दिस इज दी पाइप, दिस इज योर पाइप एंड इट इज कनेक्टेड टू अ U ट्यूब मैनोमीटर. हमने क्या किया, इस वाले एंड को we have connected through the point. So this is the center of the pipe, point A, and we want to measure what is the pressure at point A. PA हमको measure करना है. All right, and this pink fluid which is filled in the manometer, so we call this is a manometric fluid. This is manometric fluid. फ्लूइड विच इज फील्ड इन द मैनोमीटर. जो हमने ये U ट्यूब लिया है, इसके अंदर वी हैव फील्ड दिस पिंक फ्लूइड एंड उसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड. डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, लेट वी कॉल दिस इज एज अ रो m. डेंसिटी हमने क्या ले लिया, रो एंड द m फॉर मैनोमेट्रिक. लेट दिस फ्लूइड विच इज इनसाइड द पाइप, लेट इट्स डेंसिटी इज रो, or we call that as rho 1. Rho 1 is the density of the fluid in the pipe. All right, ठीक है. फ्लूइड जो इस पाइप के अंदर है उसकी डेंसिटी क्या है, rho 1 है, and the fluid which is inside the manometer, its density is rho m. Now this particular figure देख के आप क्या कह सकते हो, कैन यू से किस साइड का प्रेशर ज्यादा है. Obviously pressure at point A is greater than the atmospheric pressure. Pressure at point A is greater than atmospheric pressure. This limb is open to the atmosphere. ये
यहाँ पे प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर है, ये क्लोज है तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ये ओपन, दिस इज नॉट ओपन टू द एटमॉस्फेयर, बट दिस पर्टिकुलर लिम्ब इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर. सो इस फ्री सरफेस पे वी हैव अ पी एटमॉस्फेरिक. अभी इस साइड के फ्लूइड ने इसको पुश किया है, नीचे की साइड में पुश करके इसको ऊपर रेस किया है. अगर ये दोनों साइड, सपोज अगर मैं इस पाइप को हटा दूं, सो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा कि जहाँ पे दोनों लेवल क्या होंगे, सेम होंगे. दोनों लेवल सेम होंगे कि नहीं. अगर ये मैंने इस पाइप को अगर मैं हटा दूं, यहाँ से इस पाइप को रिमूव करके जस्ट इफ आई टेक ओनली यू ट्यूब, जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया, सो यू विल ऑब्वियसली दोनों साइड में लिक्विड का कॉलम क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज दे हैविंग सेम प्रेशर. बट दिस पर्टिकुलर लेफ्ट लिम्ब इज कनेक्टेड टू अ पाइप जिसके अंदर ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है. और इस पर्टिकुलर डायग्राम से यू कैन से कि इसने इसको पुश किया है नीचे की साइड में और ये ऊपर चढ़ गया है. इसने इसको इस साइड पुश किया, बिकॉज ऑफ दैट इस लिम्ब के अंदर दिस मैनोमेट्रिक फ्लूइड हैज रेज्ड अप. सो पी ए, ऑब्वियसली ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है तभी तो इसने इसको पुश किया है. सो पी ए इज ग्रेटर देन दी पी एटमॉस्फेरिक. नाउ लेट अस कैलकुलेट किस तरह से वी कैन फाइंड आउट द पी ए. सो फॉर दैट अगेन यूज दिस कॉन्सेप्ट. ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी विल यूज दिस. वी विल टेक अ 2 points at the same level in a continuous homogeneous liquid. So यहाँ पे you can say कि this particular line x x जो यहाँ पे ड्रॉ की हुई, this line x x, it is drawn in a pink fluid. जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसके अंदर ये लाइन ड्रॉ की हुई है. पिंक फ्लूइड का मतलब इट इज ड्रॉन इन ए मैनोमेट्रिक फ्लूइड. एंड फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां तक इट इज कॉन्टिन्यूड. यहां से यहां तक दिस इज ओनली, ये पूरा क्या है, दिस इज मैनोमेट्रिक है. दैट मीन्स दिस लाइन इज ड्रॉन इन अ कॉन्टिन्यूअस होमोजीनियस फ्लूइड. एंड दिस लाइन कैसी लाइन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन है. सो इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर फ्लूइड में लाई करने वाले जितने भी पॉइंट हैं, सो ऑल पॉइंट्स lying on this line, एक तो इसमें होने चाहिए और किस में होने चाहिए, फ्लूइड के अंदर होने चाहिए, बाहर नहीं लेना है. हाँ, इन 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 फ्लूइड. सो इस फ्लूइड के अंदर जितने भी पॉइंट यू कैन चूज, ऑल पॉइंट्स हैव अ सेम प्रेशर. जितने भी पॉइंट होंगे सब पे क्या होगा, सेम प्रेशर होगा. ऑल राइट. सो ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस फ्लूइड के अंदर जितने भी पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कितने भी पॉइंट यू कैन सेलेक्ट, हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा. दिस इज ऑल्सो यहाँ पे ये यही स्टेटमेंट बोल रहा है. एंड टू कैलकुलेट द प्रेशर वी विल यूज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ऑल राइट. सो लेट अस कैलकुलेट. लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग. सो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सो फॉर दैट, ठीक है, सारे जगह पे प्रेशर क्या होगा, ऑल दिस पॉइंट, let me remove this thing and let we call this point as a let this point in this manometric we calling as a and let this point B. All right, PA and PB will be equal. PA, no, we'll let this remove A because we have already let this point B and let this point is C, क्योंकि हमने ए यहाँ पे ले लिया है. सो प्रेशर एट पॉइंट बी दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी. एक तो ये आया फर्स्ट. व्हाट विल बी पी, लेट अस फर्स्ट राइट पी सी. पी सी कैसे लिखेंगे, पी सी कैसे लिखेंगे. सो फॉर दैट वी विल स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेट दिस पॉइंट इज डी. डी के ऊपर प्रेशर कितना है, प्रेशर एट पॉइंट डी इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक. यहाँ पे प्रेशर क्या है, इट इज एटमॉस्फेरिक. सो फ्रॉम डी टू डी से
डी से सी कैसे आएंगे? सो वी हैव टू मूव डाउन साइड, एक तो डाउन साइड मूव करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा? h2 डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा। किस फ्लूइड में मूव करना पड़ेगा? मैनोमेट्रिक फ्लूइड में मूव करना पड़ेगा। व्हाट इज द डेंसिटी? इट इज रो एम। सो प्रेशर एट पॉइंट सी कैन बी रिटेन एज P atmospheric plus y plus, because we are moving downside, and density of the manometric fluid rho m g and h2. So this will be the pressure at point C. It is equal to pressure at point C. कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है? व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट डी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑल राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी स्टार्ट मूविंग डाउन साइड, मूव कर रहे हैं। कितना मूव कर रहे हैं? h2 डिस्टेंस। h2 किस फ्लूइड में मूव कर रहे हैं? वी आर मूविंग इन द मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड, so we will take the density of the manometric fluid, so rho m g and h2. So it will be pressure at point C. Now what about B? B point पे कैसे रेस करेंगे? B point पे कैसे चलेंगे? So let us for that यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं। Let's A से मूव करना स्टार्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, यहाँ तक जाएंगे। Let this point is E. All right, ई से फिर लेट्स स्टार्ट मूव, डाउन साइड मूव करना स्टार्ट करेंगे। किस फ्लूइड में मूव कर रहे हैं? वी आर मूविंग द फ्लूइड विच इज इनसाइड द पाइप। यहाँ पे फ्लूइड क्या है? दिस इज फ्लूइड एंड इट्स डेंसिटी इज रो 1। पी ए एंड पी ई विल बी सेम बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। पी ए इज इक्वल टू पी ई। क्यों? क्योंकि they are in the same fluid as well as they are at the same level. So PA की जगह पे PE I can use, or in the place of PE I can use PA. Now E से we will move down side, एक तो नीचे की साइड मूव करना है। किस फ्लूइड में मूव करना है? जो फ्लूइड पाइप के अंदर, दैट इज रो 1 डेंसिटी का फ्लूइड है। कितनी हाइट तक मूव करना है? h1. So what I can write? Pressure at B, प्रेशर एट बी विल बी, एक तो पी ए है, ई पे जो प्रेशर है, ई पे कितना प्रेशर है? इट इज इक्वल टू ए। पी ए प्लस रो 1 जी एच 1। किस में मूव किए हैं? वी हैव मूव्ड इन द लिक्विड कॉलम विच इज फिल्ड इनसाइड द फ्लूइड। सो जस्ट यू इक्वेट, ये हमारे पास PB आ गया, दिस इज PC. Now we can equate and find out the pressure at point A. So for that क्या करेंगे? Just equate the pressure. So this will be PA plus rho 1 GH1 is equal to P atmospheric plus rho m GH2, और PA will be P atmospheric plus rho m GH2 minus rho 1 GH1. This will be your pressure at point A. All right. Remember, ये कौन सा प्रेशर है? This is your absolute pressure. This is measured with respect to 0. अगर मैं इसमें P atmospheric को 0 कर दूँ, if I place this value as a 0, so we get gauge pressure. So gauge pressure कितना होगा? Let me write here. So P gauge, not P gauge, PA, that will be equal to rho m GH2 minus rho 1 GH1. ये मेरा क्या आ जाएगा? This will be gauge pressure. So this is how we measure pressure in a pipe with the help of U-tube manometer. क्या करना है? Only जो भी है, this is the selection of the reference plane. How smartly you choose this reference plane. Reference plane के लिए क्या करना है? It should be in the same fluid. एक तो same fluid में होना चाहिए, as well as same horizontal ही draw करना है. We cannot draw inclined line. All right. So let us, ये तो पॉजिटिव प्रेशर का हुआ। सो लेट अस
look how we can measure negative pressure with the help of U-tube manometer. So same figure but difference दिख रहा है, दोनों में क्या difference है? This is open to the atmosphere, so here the pressure is atmospheric. All right. किस साइड का फ्लूइड किसने किसको पुश किया है? सो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, इसने इसको पुश किया है, दैट इज वाई इस साइड का फ्लूइड रेज कर गया है. यहाँ पे प्रेशर कम है, दैट मीन्स दिस इज द केस वेयर पी ए इज लेस देन पी एटमॉस्फेरिक. दोनों साइड में, इस साइड में रेफरेंस क्या है? पी ए, और इस साइड में प्रेशर कौन है? एटमॉस्फेरिक. सो पी एटमॉस्फेरिक ऑब्वियसली इट इज हायर देन दी P pressure at point A. Same, how you draw this reference line? यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता. यहाँ पे क्यों नहीं ड्रॉ कर सकता? Because here it is manometric fluid but here it is air. यहाँ पे air है, so I cannot draw a reference line here. But this particular line XX it is drawn in a manometric. इस साइड भी क्या है? मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, पिंक कलर का फ्लूइड है, और यहाँ पे भी क्या है? मैनोमेट्रिक फ्लूइड है. सो वी हैव ड्रॉन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इन द सेम मैनोमेट्रिक फ्लूइड, सेम मैनोमेट्रिक फ्लूइड में ड्रॉ की हुई है. सो दिस विल वर्क फॉर अस. सो दिस विल वर्क. सो लेट दिस पॉइंट इज A. Not well that this is point is B and this point is C. PB and PC. What will be PC? PC is equal to P atmosphere. क्योंकि और कोई प्रेशर है यहाँ पे? कोई नहीं है. It is only atmosphere. So PC is equal to P atmosphere. Now what about PB? PB के लिए क्या करेंगे? So this is A. So यहाँ से ये इस तरह से पॉइंट सेलेक्ट करेंगे हम. We will move somewhere here. यहाँ पे प्रेशर किसके बराबर होगा? It will be equal to PA. And then we will move in the fluid, in this fluid. कितना डिस्टेंस मूव करेंगे? H1. And let the density of the fluid is ρ1. So इस पॉइंट को if I call this point D, so what will be P at D? प्रेशर at D कितना होगा? What will be PD? So it will be PA pressure at point A plus ρ1 GH1. From A we have to move downside. कितना डिस्टेंस मूव करना है? H1. किस फ्लूइड में मूव करना है? ρ1 में. So PD will be PA plus ρ1 GH1. Now PD से फिर again we have to move downside. downside में आना है. किस में आना है? In the manometric fluid. इस फ्लूइड में मूव करना है. एंड इट्स डेंसिटी क्या हो जाएगी? रो एम यूज करेंगे. कितना हाइट मूव करना है? H2. सो आई कैन राइट PB. व्हाट विल बी PB? सो PB विल बी PD प्रेशर एट D प्लस कितना लिखेंगे? रो एम लिखेंगे. रो एम GH2. ऑलराइट. D पॉइंट के प्रेशर से कितना मूव कर रहे हैं? H2 डिस्टेंस डाउन साइड मूव कर रहे हैं. इन दी मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज कर रहे हैं. सो वी विल टेक द डेंसिटी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड. नाउ प्लेस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ PD. सो आई विल गेट PB. सो PB मेरा क्या आ जाएगा? दिस विल बी PA प्लस ρ1 GH1 प्लस ρm GH2. So this is PB and this is your PC. P atmospheric. And these two point B and C, what about B and C? They are on this in or PB is equal to PC. How? Same fluid, same continuous fluid and same label. So I can write PA plus ρ1 GH1 plus ρm GH2 and it is equal to P atmospheric. Or PA, this will be simply PA will be P atmospheric minus this two term उस साइड जाके माइनस हो जाएगा. दिस विल बी ρ1 GH1 plus ρm GH2. So this will be your absolute pressure at point A.
ये क्या होगा, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर. एंड सपोज अगर गेज प्रेशर मेजर करना है, सो फॉर गेज प्रेशर what we will do, we replace this p atmosphere with 0. So pa कितना आ जाएगा, so pa will be minus rho 1 gh1 plus rho m gh2. और ये प्रेशर क्या आएगा, this will be your gauge pressure. all right, so this is your gauge pressure, ये gauge है, and this is your absolute pressure. So U-tube manometer can also measure vacuum pressure. Vacuum pressure यहाँ से दिख ही रहा है कि this ये entire term is negative, and negative gauge pressure what indicates, negative gauge pressure what indicates, negative gauge pressure indicates vacuum. So it is a vacuum pressure. all right, so negative gauge pressure, it indicates vacuum pressure. So this is how we calculate pressure with the help of U-tube manometer. तो समझ में आ गया होगा कैसे स्टार्ट किया. So B and C have a same pressure, B and C have a same pressure. Write the pressure at point C. C के ऊपर क्या है, only atmospheric, so atmospheric. Now for B के लिए क्या करना है, this is A, so यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ पे प्रेशर सेम होगा बिकॉज द सेम फ्लूइड एंड सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. A से यहाँ तक आने में वी हैव टू मूव इन दी ρ1 फ्लूइड एज हाइट h1, सो उसको मैंने ऐड कर दिया ρ1 gh1. अगेन वी आर मूविंग डाउन साइड इन द मैनोमेट्रिक फ्लूइड h2, दोनों को ऐड कर दो, यू गेट द प्रेशर एट पॉइंट B. इक्वेट प्रेशर PB एंड PC, यू गेट pressure in the pipe. So all right, so let's do a few questions based on U-tube manometer. So this is the first question, and what it is saying, a U-tube manometer is used to measure the pressure of oil having a specific gravity of 0.85. So specific gravity दिया हुआ है SG, it is 0.85 of the फ्लोइंग इन अ पाइपलाइन. सो यहाँ पे जो फ्लूइड है, इसके अंदर जो फ्लूइड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज गिवन, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.85. सो आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. सो डेंसिटी कितना हो जाएगा, सो डेंसिटी विल बी 0.85 एंड मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर. डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000, so it will come out 850 kg per meter cube. रो वाटर क्या लेना है, रो वाटर विल बी 1000, so 1000 multiply 0.85, so 850. so this is the fluid which is inside the pipe, उसका डेंसिटी हमने दिया हुआ है. एंड इट्स लेफ्ट एंड इज कनेक्टेड टू दी पाइप. सो लेफ्ट एंड को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, पाइप से कनेक्ट कर दिया. राइट limb is open to the atmosphere, so this limb is open to the atmosphere, so यहाँ पे pressure atmospheric होगा. Next, the center of the pipe, so this is the center of the pipe, this is the center of the pipe, point A is 100 centimeter below the level of the mercury in the right limb. So right limb में जो mercury का लेवल है उससे कितना नीचे है, 100 mm. so right limb में यहाँ तक mercury है. सो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर मैं देखूँ, ये जो सेंट्रल लाइन है एंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है. ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर. एंड दिस इज द मर्क्यूरी मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है, दिस इज मर्क्यूरी, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 दिया हुआ है. सो व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी, 13.6 इनटू density of the water, so this will be the density of the manometric fluid. all right, so ये manometric fluid की density हो गई, this is the density of the fluid flowing through pipe. next क्या बोल रहा है, the difference of the mercury level in the two limbs is 160 millimeter.
सो जो डिफरेंस है दो लिम्स में, ये दिस राइट लिम्ब एंड दिस इज योर लेफ्ट लिम्ब, लेफ्ट एंड राइट, दिस इज योर राइट लिम्ब, राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट लिम्ब. सो इन दोनों में जो डिफरेंस है इट इज 160 mm. दैट मीन्स कौन सा डिस्टेंस दिया हुआ है 160. 160 कहाँ से कहाँ तक है? सो फ्रॉम हियर ये डिफरेंस और यहाँ से ये डिफरेंस, ये टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है? दिस इज 160. दिस इज 160 mm. सो डिटरमाइन द एब्सोल्यूट प्रेशर. कौन सा प्रेशर कैलकुलेट करना है? एब्सोल्यूट प्रेशर. दैट मीन्स एटमॉस्फेयर को भी काउंट में कर लेना है. सो हियर यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? दिस विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ऑलराइट, अभी रेफरेंस लाइन हम यहाँ पे कैसे ड्रॉ करें, कहाँ पे ड्रॉ करें? सो दोनों लिम्ब को कवर करता हो तो दोनों लिम्ब को, दिस विल बी आवर रेफरेंस लाइन. हमने यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी विच इज कंटिन्यू इन द मर्क्यूरी में ड्रॉ किया हुआ है. एंड let this is x and x. Let this point be called as a b. Let this is b and let this point is c. All right, b and c. So b and c obviously they are lying on the same line. So pb, pressure at point b, is equal to pressure at point c. This is the equation number 1. b और c पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा बिकॉज दे आर लाइंग ऑन दी सेम लेवल b एंड c. नाउ लेट अस कैलकुलेट pc कितना होगा. pc कितना होगा? फॉर pc यहाँ से लेट दिस पॉइंट इज d. सो d पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना है? सो कैसे लिखेंगे? वी विल राइट pd. पहले तो pd लिखेंगे प्लस किस में मूव करेंगे? सो वी मूव इन द मैनोमेट्रिक फ्लूइड. सो रो m g एंड लेट कितना डिस्टेंस मूव करेंगे? सो 160 mm. सो 160 विल बी 1.6 मीटर. ऑलराइट, सो pd पे जो भी प्रेशर है वो अभी लिख रहे हैं. pd पे कितना है? एटमॉस्फेरिक. सो फ्रॉम pd कितना मूव करेंगे? वी विल मूव 160 mm बिलो. सो बिलो वी विल टेक पॉजिटिव. सो प्लस कर दिया. रो m क्यों किया? मैनोमेट्रिक फ्लूइड में मूव कर रहे हैं. सो दिस विल बी, नाउ लेट्स राइट pc कितना हो जाएगा? दैट बिकम्स p एटमॉस्फेयर है. d पे प्रेशर कितना है? एंड रो m, सो 13.6 इंटू 10 पावर 3. दिस इज डेंसिटी. दिस विल बी 9.81. दिस इज g and 0.16. Alright, let this equation number 2. This is the pressure at point c. Now b पे कैसे पहुंचेंगे? फॉर b, सो अगेन यहाँ से हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे यहाँ तक. एट दिस पॉइंट लेट दिस इज e. सो e पे भी प्रेशर कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू a, क्योंकि ये दोनों सेम फ्लूइड में है. सेम फ्लूइड में सेम लाइन में प्रेशर डज नॉट वेरी. सो e से मूव करेंगे, वी विल डाउन साइड मूव करेंगे. कौन से फ्लूइड में मूव करेंगे? रो 1 फ्लूइड में मूव करेंगे. एंड कितना डिस्टेंस मूव करेंगे? सो टोटल डिस्टेंस 160. हमको ये डिस्टेंस मूव करना है और ये डिस्टेंस कितना होगा? 160 माइनस 100. सो दिस विल बी 60 mm. सो आई कैन राइट व्हाट विल बी pb. pb विल बी pa प्लस कितना मूव करेंगे? सो वी विल मूव रो 1 इंटू g इंटू h. कितना होगा? 60 mm मीन्स 0.06 mm. ऑलराइट, नाउ यू पुट दीज वैल्यूज. सो pa कैलकुलेट करना है प्लस रो 1 डेंसिटी कितनी है? दिस इज रो 1. सो रो 1 850 इंटू 9.81 इंटू 0.06. So this is equation number 3. Alright, and it is your PB. So this is PC and this is your PB. Now from equation 1 you place these values. So I can write P atmospheric plus में क्या है? 13.6
into 10 power 3 into 9.81 into 0.16 is equal to PA plus 850 into 9.81 into 0.06. This is 0.06. So PA सबको एक साइड कर दो. So PA will be P atmospheric plus इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा. So this will be, I can write this is 13.6 into 9.81 into 0.16 and 10 power 3 and minus कितना करेंगे 850 into 9.81 into 0.06. कैलकुलेट कर लो. हमको एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना है. दैट मीन्स वी हैव टू प्लेस दिस वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है P atm इट इज 1.01325 न्यूटन. Sorry, this will be multiply 10 power 5 Newton per meter square. Alright, or in the kilo it will be 101.325 into 10 power 3 Newton per meter square. So पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आता है, ये और ये कैलकुलेट कर लो इसको एंड यू सब प्लेस इसको ऐड कर दो. अगर मैं इसको किलो में रखूंगा so this will be 101.325 into 10 power 3 and plus इसको कैलकुलेट करने के बाद में ये कितना आएगा. दिस विल कम आउट approximately 20.84 into 10 power 3. Alright, 20 point, and if you add up so you will get 122.17 kilonewton per meter square. So this will be your answer. So this is absolute pressure. Alright, कैलकुलेशन में थोड़े से डिजिट के इधर उधर हो सकते हैं बट वैल्यूज में भी सम डिफरेंस, बट कॉन्सेप्ट यही है. सो PB हाउ विल राइट PA प्लस दिस मच डिस्टेंस वी हैव टू मूव डाउन साइड, तो उसको मैंने ऐड कर दिया. सो यू गेट PB यहाँ पे लिखा हुआ है. दिस इज योर PC कैसे लिखेंगे. फ्रॉम एटमॉस्फेयर वी विल मूव इन द मैनोमेट्रिक फ्लूइड. कितना मूव करना है 160 mm and multiply by density of the manometric fluid. Equate the pressure, दोनों साइड का इक्वेट करके you can find out pressure in the pipe. ठीक है. So let's move to the next question. Oh, this is another question. We have to calculate PA for the manometric reading shown in figure. So यहाँ पे PA लिखा हुआ है. This is the gauge. This measure your gauge pressure. तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा प्रेशर मेजर करना है. सो ऑल मैकेनिकल गेजेस, जितने भी यहाँ पे गेजेस लगे हुए हैं, सॉरी जितने भी गेजेस हैं वो हमेशा गेज प्रेशर ही मेजर करते हैं. दैट मीन्स P एटमॉस्फेरिक हमको क्या लेके चलना है, P एटमॉस्फेयर हमको 0 लेके चलना है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको क्या करना है, 0 करना है. Now this is open to the atmosphere. ये इस साइड वाला ओपन है. This is your atmospheric pressure. यहाँ पे प्रेशर हमको क्या एक्ट कर रहा है at this limb. Here it is P atmospheric. बट इस केस में हमको क्या लेना है, 0 लेना है. यहाँ पे जो रीडिंग शो हो रही है here, यहाँ पे रीडिंग क्या शो हो रही होगी वो तो हमको कैलकुलेट करना है. This is your PA. So यहाँ पे जो प्रेशर है this is your PA, pressure of the air. So not open air, this is air in the vessel, so it's not equal to the atmosphere. Atmosphere ये confuse नहीं करना कि air है so यहाँ पे atmosphere. This is in the vessel. So in the vessel obviously pressure will be difference. And this is the free surface. ये sign किसका है, this symbol indicates this is the free surface of the water. नॉट वाटर, यहाँ पे ऑयल है. सो फ्री सरफेस का सिंबल ये है. सो यहाँ पे ऑयल है. दिस पर्टिकुलर फ्लूइड है कितनी हाइट तक है 150 mm
एंड देन इट इज फिल्ड टू वाटर. कहाँ तक वाटर है? यहाँ तक वाटर फिल्ड किया हुआ है. एंड दिस इज योर मर्क्यूरी. मर्क्यूरी है, दिस ब्लैक फ्लूइड मर्क्यूरी है, एंड दिस डिस्टेंस दिया हुआ है 200 mm. सो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज पी ए. सो ऑलराइट, सो कैसे करेंगे इसको? सो लेट्स डू दैट. सो यहाँ पे प्रेशर कितना है? एयर से थ्रू यहाँ पे प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है? बिकॉज एयर तो चारों साइड प्रेशर एक्सर्ट करेगा. सो एट दिस सरफेस वी हैव अ पी ए. जो हमको फाइंड करना है वो यही, दिस इज पी ए. सो ऑन दिस सरफेस जो प्रेशर है इट इज पी ए. एंड लेट दिस पॉइंट वी आर कॉल्ड एज अ, हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं. लेट दिस पॉइंट इज ए. And let this point interface at the oil and water, let this point is B. Alright, this is B. So A के ऊपर प्रेशर कितना है? At point A प्रेशर कितना है? PA. Now what about B? B पे प्रेशर कितना होगा? But before that let us take पहले तो हम रेफरेंस ले लें कि हमको कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ पे हम प्रेशर इक्वेट करेंगे. So रेफरेंस लाइन कहाँ पे ड्रॉ करना है? For रेफरेंस लाइन what is कॉन्सेप्ट? सेम कॉन्टिन्यूड फ्लूइड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूड होमोजीनियस फ्लूइड, होमोजीनियस फ्लूइड होना चाहिए. वहीं पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. सो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? यहाँ पे नॉन, यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है? मर्क्यूरी है, और यहाँ पे क्या है? वाटर है. यहाँ पे at this point obviously this will be our reference line. This is your x. Left limb and right limb having same fluid. एक तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ये ब्लैक क्या है? मैनो Hg है, and it is same horizontal level. So x will be our reference. हमको यहाँ तक पहुँचना है. And if I call this point A and B, अगर मैं इसको A and B नहीं, suppose this is let this is P and Q. If I say this is P and Q, so pressure at P is equal to pressure at Q. ये हम इक्वेट करके now we can find. ठीक है, P इस पॉइंट का प्रेशर, P पॉइंट का प्रेशर है, Q पॉइंट का प्रेशर सेम होगा. Q सेम होगा in the same fluid mercury and the same level पे है और same fluid के अंदर है. So that is why pressure at point P जो होगा that will be equal to pressure at Q. Q तक पहुँचेंगे कैसे? पहले P को ले लें. P कैसे पहुँचेंगे? So P के लिए P के ऊपर कितना फ्लूइड है? मर्क्यूरी का फ्लूइड केवल इतना ही है, यहीं तक है. और I can write what will be pressure at point P. प्रेशर एट पॉइंट P कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करें. सो एटमॉस्फेरिक को तो जीरो लेना है. सो आई कैन राइट दिस विल बी P एटमॉस्फेरिक. अगर लिखना ही है सो आई विल राइट P एटमॉस्फेरिक प्लस यहाँ से कितना मूव करेंगे? यहाँ पे भी प्रेशर कितना होगा? यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक होगा. दिस विल बी एटमॉस्फेरिक. एयर है. सो एटमॉस्फेरिक यहाँ पे है. यहाँ से कितना नीचे मूव करना है? ओनली 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर किस में मूव करना है? रो m मर्क्यूरी में मूव करना है. मैनोमेट्रिक फ्लूइड G एंड H विल बी 0.1. ऑलराइट, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और कितना नीचे मूव करना है? 10 सेंटीमीटर. इन दी मर्क्यूरी मूव करना है, सो वी विल टेक द डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी. एंड ऑब्वियसली एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं फाइंड करना है, सो दिस विल बी योर गेज प्रेशर के लिए दिस टर्म विल बी योर 0. सो व्हाट विल बी प्रेशर एट पॉइंट P? सो प्रेशर एट पॉइंट P विल बी डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी 13.6 into 10 power 3 into 9.81 into 0.1. So this will be the pressure at point P. ये हमने कैलकुलेट कर लिया. प्रेशर एट पॉइंट P, इसको मल्टीप्लाई कर लो, सो यू विल गेट 3.16. इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल कम आउट
13.3416 into 10 power 3 Newton per meter square. So this will be pressure at point P. P के ऊपर आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, केवल मर्क्यूरी. नाउ क्वेश्चन है Q के ऊपर कैसे, Q के लिए क्या करेंगे. सो फॉर दैट यहाँ से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए. सो इट्स ऑलरेडी पी ए. नाउ पी बी के लिए कितना मूव करना पड़ेगा डाउन साइड. ए यहाँ से यहाँ तक कितना मूव करना पड़ेगा. सो फॉर दैट वी हैव टू मूव 150 सेंटीमीटर. किस में मूव करना पड़ेगा. ऑयल में मूव करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल. सो वी कैन कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ ऑयल 0.75 into 10 power 3. दैट मीन्स 750 kg per meter cube. So इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा. व्हाट विल बी पी बी. सो आई एम राइटिंग पी बी, प्रेशर एट पॉइंट बी. सो दैट विल बी द प्रेशर एट पॉइंट ए, पी ए प्लस किस में मूव कर रहे हैं. ऑयल में. सो वी विल टेक द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, रो ऑयल, जी एच. एच कितना होगा 1.5 मीटर. सो दिस विल बी प्रेशर एट पॉइंट ए. ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं अगर कैलकुलेट करना है. सो दिस विल बी पी ए, डेंसिटी ऑफ द ऑयल 750 into 9.81 into 1.5. Alright, so this will be PA plus इसको मल्टीप्लाई कर लो 750 एंड दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेते हैं. सो इट विल कम आउट, कैलकुलेट करने के बाद इट विल कम आउट 11.036 into 10 power 3. दिस विल बी इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आप चाहो तो लास्ट में कैलकुलेट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर रहा हूँ. सो दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट बी. सो बी का प्रेशर आ गया. हम ए से कितना मूव कर रहे हैं डाउन साइड. वी आर मूविंग डाउन साइड 150 सेंटीमीटर. और किस में मूव कर रहे हैं. वी हैव टू मूव इन द ऑयल. सो वी विल टेक द डेंसिटी ऑफ द ऑयल. सो पी बी. नाउ फ्रॉम बी टू सी, बी टू क्यू, यहाँ तक डायरेक्टली वी कैन मूव. सेम फ्लूइड है, वाटर वाटर वाटर. सो कैसे मूव करेंगे. सो अगेन यहाँ से पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे दिस, फिर यहाँ पे मूव करेंगे ऑन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड देन वी विल मूव वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल. सो हॉरिजॉन्टल पे तो प्रेशर सेम होगा. यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर होगा सेम प्रेशर विल बी हियर. These 2 points have a same pressure. So vertical total water column में कितना मूव करना पड़ेगा हमको. So vertical column में हमको इतना मूव करना पड़ेगा. This much distance, यहाँ से लेके यहाँ तक. ये डिस्टेंस हम किस में मूव कर रहे हैं. वर्टिकली. वी आर मूविंग इन वाटर. अब ये डिस्टेंस कितना होगा कैलकुलेट कर लेते हैं. कैसे आएगा, कैसे आएगा. सो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है. दिस इज योर 200. सो ये डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम हियर टू हियर. दिस डिस्टेंस 200 minus 150. सो दिस विल बी योर 50 सेंटीमीटर. ऑलराइट, इसमें से ये 200 ये पूरा है, 200 में से 150. सो दिस डिस्टेंस विल बी 50 एंड दिस योर 10. सो दिस whole length will be your 60 centimeter. So 60 centimeter we have moved in water column. So now I can write PQ. What will be PQ? So PQ will be PB, pressure at point B, plus we have to move in water. So we will take the density of the water into G into H. So H कितना है 60 centimeter. So this will be 0.6. So this will be pressure at point Q. Alright, so rho, G and H. This is for your water. अभी यहाँ पे place कर दो all these values. So you will get PA. PB की जगह पे now I'm placing PA plus 11.036 into 10 power 3 and plus density of the water 10 power 3 into 9.81 into 0.6. ये किसके लिए लिखा, ये इसके लिए लिखा.
और ये कहाँ से आया टोटल, दिस इज योर पी बी, यहाँ पे पी बी लिखा है, दिस इज योर पी बी, दिस विल बी योर पी बी. इक्वेट कर लो, दिस इज योर प्रेशर एट पॉइंट पी, दिस इज योर प्रेशर एट पॉइंट क्यू. इक्वेट कर लो, so you will get absolute pressure at point A. So let me change the color now. I can write in a, so this will be PA plus, ये पूरा कैलकुलेट कर लें इसको, ये पूरा 11 पॉइंट एंड ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ जाएगा, 11 एंड पॉइंट 5 के पॉइंट, so this will come out 16.922 into 10 power 3 is equal to P of the pressure at point P. So ये कितनी किसके बराबर, this is equal to 13.3416 into 10 power 3. ये कहाँ से लिखा, this is your PQ and this is your P at P. So P and Q are equal, ये इस इक्वेशन से लिखा है. So finally this will go that side, so this become negative, so PA it will come out minus 3.58 into 10 power 3 Newton per meter square. This will be your answer. आगे तो कैलकुलेशन है, you can do, or you can write this will be minus 3.58 Newton per meter square को another way of writing, so this will be minus 3.58 kilopascal. किलो 10 पावर 3 एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट विल बी योर पास्कल. सो दिस इज हाउ प्रैक्टिस करोगे, सो इट्स इजी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज थर्ड क्वेश्चन एंड व्हाट इट इज सेइंग, a pipeline water is flowing and manometer is used to measure the pressure drop flow through the pipe. So pipe के अंदर जो pressure drop हो रहा है, it is measured by the manometer. The difference in the level is found 20 centimeter if the manometric fluid is CCl4, carbon tetrachloride, when it is used. So difference of the water column is, liquid column is 20 centimeter. So find the pressure drop in the SI units. And this much ये दिया हुआ है. So पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं यहाँ तक, लेट वी सॉल्व दिस अनदर पार्ट. सो यहाँ पे पाइप है, दिस इज योर पाइप एंड इट इज कनेक्टेड टू द यूट्यूब मैनोमीटर. हमने यूट्यूब से कनेक्ट कर दिया इसको. सो लेट मी ड्रॉ दैट समथिंग लाइक दिस रफ डायग्राम. सो ओके, let me, so this is YouTube manometer. यहाँ भी क्या है, this is your water, this is your water, and in this fluid we have a CCl4. manometric fluid कैसा है, CCl4, and the difference in the level जो आ रहा है, it is 20 centimeter. So difference of the level which is found 20 centimeter. Question में दिया है 20 centimeter. So let us first write the density of the manometric fluid. So density of the manometric fluid कितना दिया है, 1.596 gram per centimeter cube. So let's convert into standard units. So it will be 1.596 gram could be -3 and meter cube that will be -6. And this will be kg per meter cube, or this can be written as 1.596 into 10 power 3 kg per meter cube, or you can write this is 1596 kg per meter cube. So this is the density. Difference कितना दिया है, what is delta H? So delta H दिया हुआ है 20 centimeter and it is 0.2 meter. Alright, density delta H 0.2 meter. So जितना भी प्रेशर ड्रॉप हुआ है, it is
equal to the 20 centimeter दिया है, so I can write what will be delta P. So delta P will be rho G and delta H. कितना डिफरेंस मिला है दोनों में, प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, जितना वाटर कॉलम डिफरेंस होगा, सो इट इज डेल्टा H. और here we will take the density of the manometric fluid, rho mgh. बस प्लेस कर लो, you will get your answer. So 1596 into 9.81 into 0.2. कैलकुलेट कर लो इसको. So this will come out 3.13 kilopascal. This will be the answer of the first part. ठीक है. So डेल्टा P जितने का भी ड्रॉप हो रहा है, it is showing by the height of the वाटर कॉलम, हाइट ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड, वो दिया हुआ है डेल्टा एच. डेल्टा एच दिया हुआ है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन कैलकुलेट, कन्वर्ट इनटू द प्रेशर. ये क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज योर प्रेशर हेड. ये क्या है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड. हेड के टर्म में दिया हुआ है और डिक्रीज हो रहा है, नॉट लॉस. सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड. तो प्रेशर हेड को प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय मल्टीप्लाई स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी, नॉट स्पेसिफिक वेट, बाय वेट डेंसिटी. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट आंसर. सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड इज रिप्लेस्ड बाय द मर्क्यूरी व्हिच इज डेंसिटी दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द लेवल. Now in this case यहाँ पे क्या है, this is your CCl4 और उसकी डेंसिटी कितना हुआ है, it is 1596. Now this fluid, तो उस केस में डेल्टा एच कितना मिल रहा है हमको, when we are using CCl4, so उस केस में डेल्टा एच कितना मिल रहा है हमको, we are getting 20 centimeter. Now he is saying if for the same डेल्टा P, if I remove this CCl4 by Hg, अगर यहाँ पे मैं Hg डाल दूँ, so what will be your delta H. So delta P तो ये लेंगे, delta P will be, so let me write when manometric fluid is replaced by mercury. So in that case delta P क्या लेंगे, so delta P वही रहेगा 3.13 kilopascal. So 3.13 into 10 power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और इस केस में हमको डेल्टा एच चाहिए, so what will be delta H, difference in the liquid column. So I can write delta P, it is rho G and delta H. But यहाँ पे किसका लेंगे रो, we will take the mercury. किसका रो लेंगे, because now we are using mercury, so we will take the density of the mercury. So density of the mercury कितना होगा, so relative density 13.6 into 10 power 3. वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, so this will be kg per meter cube. So delta H will be delta P divided by rho of Hg and multiply G. So delta P 3.13 10 power 3 and divided by density of mercury 13.6 into 10 power 3 into 9.81. 10 power 3. So this will come out 3.13 and divided by 13.6 into 9.81, and this will be in meter. इसको कैलकुलेट करो, when you calculate you will get 0.0234 meter, or in terms of centimeters it will be 2.34 centimeters. So this will be your answer, 2.34. So पहले वाले केस में क्या मिल रहा था, डेल्टा एच पहले वाले केस में था 20 सेंटीमीटर, and when it is replaced by mercury, so उस केस में 2.34 सेंटीमीटर. क्यों हो रहा है ऐसा, why, because we have replaced the manometric fluid
by a heavier fluid. हमने एक heavier fluid से इसको replace कर दिया है. देख सकते हो density of the mercury कितना होगा. So 136 and this will be your the density of the mercury. जबकि उसका कितना था, उसका था 1596. Density of CCl4 1596. And if you compare this density, so it is much heavier than the carbon tetrachloride. So if you replace by अगर आप मैनोमेट्रिक फ्लूइड में if we have a heavy fluid डाला है, so in that case obviously deflection will be smaller, water deflection will be smaller. अगर lighter fluid है, so obviously delta H will be larger. So this is the third question. So thanks for watching, and please share and subscribe the channel for regular updates. Okay, thank you.